everyone. I, Chetna Garg, welcome you all to day 1 of Pritika 2021 Convention of Media Students, organized by DME Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, a premier college affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and approved by Bar Council of India. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Verghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival CFE, International Conference ICANN and Ritika Convention of Media Students, and newly added in the list is VIS, Vibrant India Series. The 3-day Convention of Media Students is being conducted from October 11 to 13, 2021 on the theme United India, Unique Minds. Our hashtag is hashtag Youth for India. Our media partner for Ritika 2021 is Jai Hind Times. The event is powered by Spark, the student body of DME Media School. Spark, that is students with positive attitude and resonating communications. Ritika 2021 is a convention of media students, aims to provide a platform to engage media students in thought-provoking discussions, debates, and discourse, and enhance their confidence and personality through the deliberations and develop consciousness among the media students for responsible and accountable professional conduct. This year, we received more than 100 registrations from all over the country, from Himachal to Assam, from Kerala to Maharashtra. This year, it is truly a national event. Vritika 2021 presents 8 live competitions, 7 pre-submission competitions, and 3 workshops. Today, I warmly welcome you all to Slam Poetry Competition. Slam poetry is a spoken word poetry that combines the elements of performance, writing, competition, and audience participation. It is performed at events called poetry slams or simply slams. The name slam came from how the audience has the power to praise or sometimes to destroy a poem, and from the high energy performance styles of the poets. Slam poetry breaks the notion that poetry is an elitist concept. I assure you that this program shall be full of excitement and will create some beautiful memories for us all. It is rightly said, days are not lost when memories are created. The theme for the competition is unpopular opinions. Before we start today's session, I would like to invite Professor Dr. Susmita Bala, HOD, DME Media School, to say a few words. Thank you, Chetna. Good afternoon, everyone. Hello, Ritu ma'am. Hello, ma'am. Charan Sparsh. How are you? I am fine. So, welcome Dr. Ritu Dubetiwari and Yagya Pandey as a judge in Slam Poetry. Afternoon. It's a very interesting event. तो अब हमें देखना ये है कि इस कंपटीशन में किसकी और कैसी परफॉर्मेंस है और कौन विजेता होता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, जैसा कि चेतना ने ब्रीफ भी किया कि इसमें हम क्या क्या करते हैं. तो लेट्स एंजॉय दिस इवेंट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया इस इवेंट का नहीं है. दिस इज अ न्यू फॉर मी. So let's see किस तरह की परफॉर्मेंस है और क्या है. So thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. We feel honored to have with us Dr. Ritu Dubetiwari and Mr. Yagya Pandey as a special guest for today's event. Dr. Ritu Dubetiwari is currently working as a principal of NISCOT, New Institute of Social Communications, Research and Training, a media college in Vaishali, Ghaziabad, UP. She holds a PhD degree from Dr. H.S. Gaur University, Sagar, MP,
along with a double MA and a UGC NET qualification. She has also completed her B.Ed and C.Ted. She has done her specialization in radio, documentary, filmmaking, editing, script writing, and research. She has over 18 years of experience as a media faculty and a media course coordinator. Our second judge is Mr. Yagya Pandey. He is our alumni judge. He has completed his bachelor's in BJMC from DME only. He is currently pursuing master's in literature, in English literature from ICNU. Mr. Yogi Pandey was born and raised in New Delhi and Dehradun, and has for the better part of his life taken an active interest in literature and music. He holds a diploma in Indian classical vocals from Gandharva Mahavidyalaya, Delhi, and has been a creative storyteller since 2016, with one of his 2 completed fiction novels now ready for publication. Yagya has worked primarily as a copywriter and brand marketer within the advertising fraternity. Welcome Dr. Ritu Dubey Tiyari and Mr. Yagya Pandey. Thank you for having me. Thank you so much. Before Thank you. Thank you so much, Chetna, for your beautiful and kind words. Thank you. You're most welcome, ma'am. Before proceeding further, I would like to recall all the rules and regulations for the competition, which are as follows. Poems must be original work of the performer. Absolutely no profanity is allowed. Performers must recite their poems from memory. Use of a written medium, paper, notebook, or anything else results in deduction of points from the performer's score. Performers cannot use props, costumes, pre-recorded or taped music, or any musical instrument while performing. This is a performance, not a reading. Choreographed movement and unique expressions are encouraged. Each performer will get 3 minutes plus a 10-second grace period to read one poem. Please abide by the rules to avoid disqualification. The entries will be judged on the basis of articulation, expressions, creativity, and performance. So, are you ready? Okay, as we have this competition on online mode, I can't hear your cheerful voices, but yeah, I'm sure you that all you are as excited as I am. So let's start the competition with our first participant, Johnson Priyadarshi from Central University of Himachal Pradesh. सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है उम्र एक सफर। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि सांसें चल रही थी मगर मैं जी कहाँ रहा था, खुली थी मधुशाला मगर मैं पी कहाँ रहा था। एक शाम आई फिर जिंदगानी में जो बदल गई सब कुछ कहानी में। गुजर रहा था वक्त या गुजर रहा था मैं, शायद हकीकतों से अपनी मुकर रहा था मैं। कुछ बहका सा ही राही हूँ, सूने रास्तों पर चलने की आदत सी है। मुसाफिर पाए मैंने 100 रंग पर, खुशी खुशी मैंने सबसे इबादत की है। यूं तो हर दुखती नफ्स को अपनी सजाया था मैंने, लाख कोशिशें की मगर हर छोटी बड़ी हंसी को गवाया था मैंने। ये भी महज सफर है हमदम, कब तुम रहोगे कब हम रहेंगे, सीखोगे जीना जब तलक शायद कुछ कम रहोगे। कुछ इस कदर जीना चाहता हूँ जिंदगानी को कि धड़कने मुझे मेरे कानों तक सुनाई दे। रंगना है खुद को कुछ इस सलीके से कि परछाई मेरी अंधेरों में भी दिखाई दे। कि अब बहक भी लेने दो मुझे, फर्क नहीं पड़ता इस जमाने से। कई बेड़ियों ने घेरा था मुझे, तोड़ आया हूँ किसी बहाने से। धन्यवाद। Wow, how captivating it was. The second participant we have is Priya Mishra from the college, Delhi Metropolitan Education. सबको सबसे पहले तो नमस्कार। जो मेरी पोट्री है वो अनपॉपुलर ओपिनियन के ऊपर ही है। तो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि तुमने ना सोचा तो मैं भी ना सोचूं, तुमने ना सोचा तो मैं भी ना सोचूं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि तुमने चाहा तो मैं भी सह लूं, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि तुमने चाहा तो मैं भी सह लूं, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि तुम नहीं मानते, क्योंकि तुम नहीं मानते तो मैं अपनी मानवाधिकार भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे विचार नहीं पसंद तो मैं गलत, ये तो कोई बात नहीं होती। नहीं पसंद तुम्हें गलत, ये तो कोई बात नहीं होती। तुम सही हो, तुम सही
सही हो इस बात का कोई आधार नहीं तुम्हारे पास, तुम सही हो इस बात का कोई आधार नहीं तुम्हारे पास, लेकिन जो मैं तर्क दूं तो क्यों ना समझी कर टैग दे देते हो यार। परंपरा के नाम पर तुम बेड़ियों से जकड़ते हो, परंपरा के नाम पर तुम बेड़ियों से जकड़ते हो। अरे आजाद हूं मैं, इस आगाज को कैसे रोकोगे, इस आगाज को कैसे रोकोगे। चुपचाप ही सह लूंगी हर महीने का दर्द, ये कैसे सोच लेते हो। चुपचाप ही सह लूंगी हर महीने का दर्द, ये कैसे सोच लेते हो। भूल कर नारी शक्ति ना जाने कैसे दुर्गा पूज लेते हो, न जाने कैसे दुर्गा पूज लेते हो। क्योंकि तुम चाहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि ना कुछ बोलूं ना कुछ सोचूं ना सवाल हो, देखो कोई बवाल ना हो। अरे रुको, ये बताओ, ये समझो कि यहाँ पर मैं हूं तो सवाल भी होंगे, सवाल के साथ बवाल भी होंगे। मैं हूं तो सवाल भी होंगे, सवाल के साथ बवाल भी होंगे, एक एक पे आएंगे, जरा अपनी बारी पर ध्यान रखिए। तो बात कुछ ऐसी है, क्योंकि तुम पीछे हो जाओगे मैं आगे बढ़ना रोक तो नहीं सकती, क्योंकि तुम पीछे हो जाओगे मैं आगे बढ़ना रोक तो नहीं सकती, क्योंकि तुम घूरोगे मैं अपने रास्ते हर बार मोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें जीना है मैं अपना गला घोट तो नहीं सकती, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो मैं बोल नहीं सकती। छोटे कपड़ों में रेप होते हैं, सूट सलवार में क्या हम सेफ होते हैं। अरे नहीं, कितना मेकअप करती है। हाँ तो क्या तुम्हारे जेब से लेती है। हाँ लड़कों से बात करती है। हाँ लेकिन तुम्हारी क्यों चलती है। समाज में जब भी कोई अलग विचार तर्क की बात करे तो सवाल उठते हैं, क्योंकि तुम जो मानते हो वो सही है, क्योंकि तुम जो मानते हो वो सही है, हमारे गलत होने का ये तो कोई तर्क नहीं है। क्योंकि तुम्हें प्रिय नहीं हमारे विचार, क्योंकि तुम्हें प्रिय नहीं हमारे विचार, तो हम अलोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो जाते। तब तक गलत नहीं हो जाते तब तक जब तक तर्क वितर्क से ही समाज में नए आधार है बनते। तर्क वितर्क से समाज में नए आधार है बनते। आभार करो कि अब तक तुम्हारे आधार थे बचे, क्योंकि अब होगा आगाज तो शायद ना बचे वो आधार। सही गलत के फैसले, सही गलत के फैसले लेने से पहले उसमें तर्क का छौंका लगा दिया करो। समय के साथ बदलना है तो समय के साथ बदलना सीख भी लो। थैंक यू। Wow, it was just awesome. Our next participant is Ananya from the college Delhi Metropolitan Education. हाय एवरीवन, मैं अनन्या और मेरी पोयम है यहाँ नाम से फर्क पड़ता है। कह गए गोविंद, कह गए गोविंद, तुम्हारे कर्म से तुम्हारा नाम नहीं होता, तुम्हारे नाम से तुम्हारा धर्म नहीं होता, और कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें बोल गए, ऐसे शब्द छोड़ गए, ऐसे बातें बोल गए, ऐसे शब्द छोड़ गए, पर अब इन बातों पर अमल नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ऐसी बातों पर अमल नहीं होता, ऐसी बातों पर अब विश्वास नहीं होता। अब तो यहाँ सारे काम नाम से होते हैं, अब तो यहाँ सारे काम नाम से होते हैं। अगर नाम बड़ा ना हो तो क्या काम नहीं होता। अगर नाम छोटा हो तो चाहे कितना संघर्ष कर लो, चाहे कितने जुल्म सह लो, उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। जात पात धर्म पर भेद यहाँ हजार है, उपनाम को जानकर तिरस्कार करने को आतुर सारे हैं। अनेकता में एकता के नारे लगाने वाले सारे हैं, अनेकता में एकता के नारे लगाने वाले सारे हैं। निर्बल को पैरों तले रौंद कर ईश्वर को खरीद रहे सारे हैं। मंदिर मस्जिद गीता कुरान सिखा रहे सब एक सीख, मंदिर मस्जिद गीता कुरान सिखा रहे सब एक सीख, लेकिन इस सीख के रक्षक लड़ रहे आपस में सारे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने वाले, औरत पर गलत नजर डालने वाले सारे हैं। इंसान को समानता पर अमल करने वाले, इंसान के समानता पर अमल करने वाले लोग मुर्दा ही क्यों इतने सारे हैं। मेरे कर्म से मेरा नाम नहीं, मेरे नाम से मेरा कर्म है। मेरे कर्म से मेरा नाम नहीं, मेरे नाम से मेरा कर्म है। अंगराज गीता में ऐसी बोल गए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी महान बातों को छिपाकर, ऐसी महान बातों को छिपाकर राजवंशियों का एहसान गिनाने वाले लोग बहुत सारे हैं। राजवंशियों का एहसान गिनाने वाले लोग भी तो बहुत सारे हैं। कर्ण हो या एकलव्य, कर्ण हो या एकलव्य, अंबेडकर हो या कलाम, कर्ण हो या एकलव्य, अंबेडकर हो या कलाम, हो चाहे वंदना, इतने काबिल होने के बाद भी, इतने काबिल होने के बाद भी बदनाम न जाने क्यों ये सारे हैं। हाँ
शायद नाम छोटा है, हाँ शायद नाम छोटा है, इसीलिए दाग सूर्य चंद्रमा के समान होकर भी दाग समान ये सारे हैं। कहते हैं कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता, कहते हैं कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये तो किताबी बातें हैं, किताबी बातें बताने वाले लोग बहुत सारे हैं। शुक्रिया। It was indeed a beautiful performance, Ananya. Our next participant is Anjali Sinha from K.R. Mangalam University. Hello everyone, and the name of my poetry is सफर। शुरू करूं मैं सफर शब्द से, बात करूं मैं सपने की, सफर मेरा उसे पूरा करने की। बात करूं मैं उड़ान की, सफर मेरा छूने आसमान की। शुरू करूं मैं सफर शब्द से, बात करूं मैं खुशी की, सफर है मेरा माँ मुस्कान तेरी। बात करूं मैं खुशी की, सफर है मेरा माँ दुआएं तेरी। शुरू करूं मैं सफर शब्द से, बात करूं मैं गिरने की, सफर है मेरा उठकर संभलने की। बात करूं मैं भीड़ की, सफर है मेरा अपनी नई पहचान बनाने की। शुरू करूं मैं सफर शब्द से, बात करूं मैं उड़ने की, सफर है मेरा आसमान छूने की। That's all. Thank you. It was so delightful, Anjali Sinha. Next we have is Nandini Kasera from Symbiosis Institute of Media and Communication. Hi, good afternoon all. So the topic which I chose is imperfection is the new perfection. And here how it starts. Life. Life is not like a math puzzle where you expect solutions for every problem, where you know what's right, what's wrong in that very instant. Life is not chasing the value of X, but leaving it behind in the past, as that is where it belongs. There are days when life may seem a bit too hard, a bit too heavy, but then the world says that the show must go on. Let me tell you one thing, my friend. Don't let the fools fool you. They don't know half the journey you have been through. I wish someone had told this to me before, that time doesn't heal the pain. It just buries it deep within. And the more you keep it in, the heavier it gets. So cry it out. Soak your tears in those tissues and then just see your past in them. Just flush them out before it gets way too heavy for you to carry. Just cry your eyes and your heart out if you must. Cry when your favorite character dies. Cry when your life seems a bit too tough, a bit too unfair. And just after that, look at the mirror and be proud to realize that you have passed through that phase. Don't get influenced by what the world says. Don't let the word perfect control your life. Life is not meant to be perfect. Life is not meant to be controlled. Emotions are not meant to be bottled up. Let yourself feel every emotion. As to feel is to be human. So I say, it's okay. It's okay to not be okay. It's okay to be weak. It's okay to not be perfect. It's okay to not show up daily. And trust me when I say this, there will be a new morning, a new start, and a new day. Till then, allow yourself to not be okay and to feel every emotion. Thank you. My heart is still smiling. This was just wow. Our next participant is Ashay Inamdar from Symbiosis Institute of Media and Communication. Good afternoon, all the teachers and the judges. मेरे कविता का शीर्षक है कौन कहता है कि लोग भूलते नहीं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो मैंने कोशिश की है लिखने की। तो या हियर इट गोस। कौन कहता है हम भूलते नहीं, टहनी पर बैठ झूलते नहीं। महसूस करना हमें आता है, महसूस करना तो हमें आता है, पर भूल जाना हमें भाता है। वो टहनी तो रहती है सदा लिपटी हुई समय के दीमक में। वो टहनी तो कहती है सदा फुर्सत हुई तो आऊं याद में। पहचान गए उस टहनी को या याद दिलाऊं? पहचान गए उस टहनी को या याद दिलाऊं? विशेषण कई है, विशेषण कई है, लेकिन भावना एक। गौर से सुनो, गौर से सुनो ये कहानी नेक। भूल जाते हैं लोग, आप मुझसे पूछिए,
छोटे छोटे कई सवाल आप खुद से पूछिए। पहली तनख्वाह, पहली तनख्वाह, पहली स्कूटर, पहली तनख्वाह, पहली स्कूटर, फटफटी आवाज, उड़ते कबूतर, बालों से बातें, हवा की दुलार, लहराते दुपट्टे, महकता प्यार, बारिश में सवारी, बारिश में सवारी, दोनों थे राजी, कितनी बड़ी है दुनिया, कितनी बड़ी है दुनिया, जिंदगी छोटी सवारी, बारिश में सवारी, दोनों थे राजी है दुनिया, जिंदगी छोटी सवारी, गुस्सा, झगड़ा, रूठना, मनाना, अरे मौसम थे ये, बस पहिए घुमाना, गुस्सा, झगड़ा, रूठना, मनाना, मौसम थे ये, बस पहिए घुमाना, सालों की मेहनत, सालों की मेहनत, बेहद तरक्की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कूटर खड़ी अकेली, सालों की मेहनत, बेहद तरक्की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कूटर खड़ी अकेली, धुंधली सी यादें, सुबह सुबह दोहराए, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, धुंधली सी यादें, सुबह सुबह दोहराए, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, चाय खत्म, यादें खत्म, चाय खत्म, यादें खत्म, रास्ते, दुपट्टे, बारिश, कबूतर, मंजिलें, रास्ते, दुपट्टे, बारिश, कबूतर, मंजिलें, ये सब करते तुम्हें याद है, ये सब करते तुम्हें याद है, लेकिन उनकी उम्र जितनी तुम्हारी चाय है। भूल जाते हैं लोग, आप मुझसे पूछिए, छोटे छोटे कई सवाल आप खुद से पूछिए। थैंक यू। This was truly mesmerizing. The next one we have is Hridaya Srivastava from Symbiosis Institute of Media and Communication. Hello everyone. Good afternoon. I'm Hridaya from Symbiosis, and as the theme is unpopular opinions, I have written a poem about unpopular opinions as a whole. So here it goes. Unpopular opinions are opinions that were silenced, like those books that were talked about so much but never ever read, like those flowers which are actually beneficial but are never gifted, like those places which are photoshopped behind pictures but people never actually visit them, like those students in your class who are sidelines just because they lack the style, like the first crush you thought were not enough to say your feelings to because you want to keep it for the first love. Unpopular opinions are not unpopular because they don't have the strength to stand on the forefront. They're unpopular because people think they would be sidelined if they speak them out. They think that they would be bashed by people around them. Unpopular opinions are those who people fear from speaking out because they think it's important for them to be popular and speak out what others think. And then they look at those opinions with the eyes and see loneliness and not the peace of isolation. They see absurdity and not the uniqueness. But if here I say that let's put the unpopular opinions on the forefront and talk about them, it in itself would be a popular opinion. So let me state something unpopular here. When people put these unpopular opinions on the forefront, they would try to look at them with their popular beliefs, and hence it will lose their uniqueness. So the more unpopular,
the more the better. Thank you. Very well presented, Hridaya. To move on to our next performance, we have is Aditya Singhal from Delhi Metropolitan Education. नमस्कार, मैं आदित्य सिंघल और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है जो आप सबके साथ कोरोना में हुई है। मेरी कविता है, गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निकला हूँ। मैंने दूरी अपनी अपनों से बनाई है, ना छूने की उन्हें जैसे कसम सिखाई है। वीडियो कॉल से चलती हैं सांसें मेरी, इस बार मैंने फोन की स्क्रीन पे दिवाली मनाई है कि गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निकला हूँ। 4x4 के कमरे में हंसी और आंसू मैंने दोनों बसाए हैं, किस्त की गिनती में मैंने महीनों बिताए हैं। जन्मदिन और सालगिरह का तो पता नहीं, पर बर्तन झाड़ू कपड़े मैंने खुद धो के सुखाए हैं। खर्चों पर लगाम लगाते हुए कुछ सपनों के भी गले दबाए हैं, क्योंकि गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निकला हूँ। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम में जरा अटक सा गया हूँ। वैक्सीन कोई आई है ये आजकल सुनता रहता हूँ, कैलेंडर बदलने की अब अपनी बारी आई है। तारीख भले ही बदले तकलीफ बहुत भारी है। वेंटिलेटर पर है आशाएं मेरी, पर हौसलों की उड़ान जारी है। चेहरे पर मास्क, हाथों में सैनिटाइजर, अपनी पूरी तैयारी है, क्योंकि गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निकला हूँ। Great work, Aditya. Our next participant is Ganga Verma from Guru Nanak Girls Senior Secondary School. Hello, a very warm good evening to everyone here. So I'm going to recite a poem in front of you, a Hindi poem that I wrote on the topic rapes. So let me start. हैवानियत के रंग देखो हर रास्ता बदनाम है, हैवानियत के रंग देखो हर रास्ता बदनाम है। कहीं मारते हैं कोख में कहीं होती वो नीलाम है, कहीं मारते हैं कोख में कहीं होती वो नीलाम है। झंझोर देना सांसों को क्यों घूमती शरेआम है, झंझोर देना सांसों को क्यों घूमती शरेआम है। तुम मिटा देना वजूद उसका अरे औरत जिसका नाम है, झंझोर देना सांसों को क्यों घूमती शरेआम है। तुम मिटा देना वजूद उसका अरे औरत जिसका नाम है। हर कतरा निचोड़ देना ये मर्दानगी का जाम है, हर कतरा निचोड़ देना कि ये मर्दानगी का जाम है। तुमने बख्शा अपनी बहन को तुम्हारी राखी को सलाम है, तुमने बख्शा अपनी बहन को तुम्हारी राखी को सलाम है। पर्चों में बिकते तो कुछ ही है ना जाने कितने ही गुमनाम है, पर्चों में बिकते तो कुछ ही है ना जाने कितने ही गुमनाम है। डरो मत कुछ बदलता नहीं बस ये स्टेटस लगाती आवाम है, डरो मत कुछ बदलता नहीं बस ये स्टेटस लगाती आवाम है। परवरिश क्या खूब निभाई ये उन माओ का इनाम है, परवरिश क्या खूब निभाई ये उन माओ का इनाम है। अरे मार तुम मिटा देना वजूद उसका अरे औरत जिसका नाम है। शोर होते हैं पर तुम डरो मत ये सब रुकेगा नहीं, शोर होते हैं पर तुम डरो मत ये सब रुकेगा नहीं। सीखा तो है ना तू मर्द है तो झुकेगा नहीं, सीखा तो है ना तू मर्द है तो झुकेगा नहीं। हैवानियत के रंग देखो हर रास्ता बदनाम है, कल 100 थी आज 1000 है ये रेप होना तो बहुत आम है। हैवानियत के रंग देखो हर रास्ता बदनाम है, कल 100 थी आज 1000 है ये रेप होना तो बहुत आम है। इंसानियत के ढंग देखो ये कैसा रिवाज है, कोई पाले उसे उम्र भर कोई चीरता आवाज है। इंसानियत के ढंग देखो ये कैसा रिवाज है, कोई पाले उसे उम्र भर कोई चीरता आवाज है। अरे मार दो बीच बाजार में पर कोई रोक नहीं लगने वाली, चाहे मार दो बीच बाजार में पर कोई रोक नहीं लगने वाली। ये रेप तो तब तक होते रहेंगे जब तक इन नियतों पे बचपन से कोई टोक नहीं लगने वाली। हैवानियत के रंग देखो हर रास्ता बदनाम है, कल 100 थी आज 1000 है ये रेप होना तो बहुत आम है। थैंक यू। I really liked your performance, Ganga. The next one we have is Rishabh Agrihari from Symbiosis Institute of Media and Communication. आसान है, जिंदगी के सफर के लिए एक राही चाहिए, वो राही जो प्यार से बढ़कर दोस्त है, जो मेरे हर छोटे मंजिल का मुसाफिर बन
हर सफर हसीन कर गया, मगर जिंदगी का सफर अधूरा छोड़ गया। चल आखिर अपना तो पूरा कर गया। टाइटल ऑफ माय पोएम इज इश्क नहीं, दोस्ती अधूरी है। दोस्ती। प्यारे थे वो, दुलारे थे वो, लेकिन सबसे ज्यादा हरामी थे वो। पलके झुकाते ही आ जाया करते थे वो, आंसुओं की अहमियत समझा करते थे वो। प्यार बड़ा करते थे वो, बस बरसाते गालियों में थे वो। जीने का मकसद जुड़ चुका था तुमसे, कभी ना सोचा था हो जाएंगे जुदा हम फिर से। कहा तो था, कहा तो था जिंदगी के सफर में हम साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन जिंदगी के सफर में हम खोकर रह गए कुछ ऐसा कि वक्त ही ना मिला वक्त से ये पूछने का कि मेरा यार है कैसा। जिंदगी से जुड़कर जीना सिखाया था उसने, जिंदगी से झगड़ कर जीना सिखाया था उसने, लेकिन इन लम्हों को उसके बिन जीतना ना सिखाया था उसने। लड़खड़ाते कदमों को सहारा दिया करता था वो, लड़खड़ाती कदमों को, लड़खड़ाती जिंदगी को संभाला करता था वो। आंखों में देखकर समझ जाया करता था वो, ऐसा प्यारा दोस्त था वो। हाँ, आज फिर जरूरत है तेरी मुझको, जिंदगी का सफर फिर अधूरा लगने लगा है, कहाँ है तू। उस गलियों से गुजरने पर अब भी तेरी आवाज सुनाई देती है, माँ को आवाज देकर फरियाद करने वाले कहाँ है तू। शायद शायद तू पहले जैसे ना रहा, या मेरे देखने का नजरिया ही बदल गया हो। आज भी याद आती है तेरी, याद बार बार सताती है तेरी, कहाँ है तू। तेरी परछाई को सही रास्ता समझकर चल दिया करता था मैं, बिन कुछ सोचे समझे तुझे ही अपनी राह समझ लिया करता था मैं। जहां है लौट आ फिर सताना है तुझे, वही गलियों से फिर गुजरना है मुझे। जिंदगी के कई राज अधूरी है, अधूरे है, जिंदगी के कई बातें अधूरी है। चल आ फिर बैठे साथ फिर मुस्कुराए, खो जाए जिंदगी को भूल कर हमारे बीते उन लम्हों में, चल खो जाए हमारे उस यारी में। थैंक यू। It was truly a heartwarming performance, Rishabh. Participants, hold your hearts as it's time for the comments from our honorable judges. Now, I would like to request our judge, Dr. Ritu Dubey Tiwari, to share her comments on the entries. Truly, it was really a beautiful evening, I must say. आज की शाम बेहद खास है, क्योंकि ये शाम ऐसी है जिसमें जो लोग भी आज एक साथ हैं ऑन स्क्रीन, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, पोएट्री। एंड बिलीव मी, मैंने 2 किताबें लिखी हैं पोएम्स पे, तो मैं इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह सकती हूँ कि जो पोएम्स लिखते हैं, जो अपनी बात को एक रिदमिक तरीके से या नॉन रिदमिक तरीके से कहने की जो कैपेसिटी है या कैलिबर रखते हैं, वो बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव लोग होते हैं। एंड आई मस्ट से कि आज की दुनिया में सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। So I must say all of you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yes, and then overall 10 participants. So I must say, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम था। सबके एक बहुत खूबसूरत बात कहने का अंदाज था, किसी का कंटेंट बहुत ब्यूटीफुल था, तो किसी का अपनी बात को कहने का अंदाज बहुत अच्छा था, किसी ने अपनी बात को किसी दूसरी भाषा में कहा जो उसकी मदर टंग नहीं थी या उसकी मातृभाषा नहीं थी, किसी ने उस भाषा में कहा जिसमें वो ज्यादा कन्वीनियंट थे, ज्यादा इजी थे, ज्यादा सहज थे। बट एक बात है, जो भी कहा बहुत दिल से कहा और बहुत करीब कहा। बल्कि जब मुझे ये इनविटेशन मिला तो मैंने प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल यही पूछा, प्रमोद जी हम कैसे चेक करेंगे कि ये कविताएं ओरिजिनल हैं या उसकी लिखी हुई कविताएं हैं? और इस सवाल का जवाब हम में से किसी के पास नहीं था, क्योंकि प्लेजरिज्म या इस तरह के कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है स्पेशली पोएम्स के लिए जो हम ढूंढ सकते थे। बट आई मस्ट से कि पूरे कंपटीशन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा वो ये रहा कि सबने अपनी लिखी बात कही, और ये सबसे खूबसूरत बात है, ईमानदार बात है। और
संवेदनशील लोगों की एक खासियत होती है, वो ईमानदार होते हैं। मुश्किल है ईमानदार होना, लेकिन वो ईमानदार होते हैं। इस सारी पोएम्स को सुनने के बाद मुझे मेरा लिखा एक शेर याद आ रहा है। खामोशी कह जाती है हर्फ से परे। हर्फ मतलब होता है शब्द। खामोशी कह जाती है हर्फ से परे, दर्द को समझने का हुनर शब्दों में कहाँ होता है। तो जो दर्द, हाँ थैंक यू सो मच। ये एक बात है कि जो बात आप कहते हैं, जो बात आप महसूस करते हैं, उसे कहना एक बहुत बड़ी चीज है। मैं कुछ चीजें थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा शायद पोएट्री के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं कुछ सजेशन एक जनरल तौर पे 3 सजेशन देना चाहती हूँ। पहली चीज तो मैंने कुछ की पोएम्स में ये देखी कि उन्होंने बहुत नए शब्दों को इस्तेमाल किया है। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप नए शब्दों को इस्तेमाल करें, नए भाव के लिए नए शब्दों को इस्तेमाल करें, पर इट शुड बी वेरी कन्वेंशनल। आप जो शब्द यूज कर रहे हैं उससे आप कन्विंस होने चाहिए। शब्दों के इस्तेमाल के लिए समथिंग लाइक कोई नहीं है कि आप बहुत नए शब्दों को इस्तेमाल करें तो पोएम और स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात जस्ट अपोजिट है। कुछ लोगों ने बहुत कॉमन या कहना चाहिए लोकल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें भी कुछ पोएम में कुछ शब्द डाले। लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपकी पोएम को, आपकी कविता को एक लिमिटेड दायरे से बाहर तक लोगों को समझने में मुश्किल होगी आगे चल के। तीसरी चीज, बहुत सारी पोएम्स अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी पोएम में इंटरेस्टेड हैं तो कविता कोश है, जिसमें मेरे ख्याल से पिछले 100 साल तक के जो कवि हैं, शायर हैं, उनका कलेक्शन आप ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ। उर्दू पोएट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रेख्ता एक बहुत फेमस वेबसाइट है, आप उसमें पढ़िए। उसमें आपको पता चलेगा कि विश्व के जितने भी बड़े और जितने भी स्टैब्लिश जो शेर लिखने वाले शायर हैं या जो नए लोग हैं वो सब उसमें हैं। जैसे हम लिखने के लिए एक बात कहते हैं ना कि आप कम से कम 1000 शब्द पढ़ें तब जाके 100 शब्द लिखें। आप कम से कम 10 कविताएं पढ़ेंगे तब जाके एक कविता के लिए आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा। तो ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगी कि छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, छोटी छोटी कोशिशें हैं, उसी से मंजिल बनती है ना। और वो एक बहुत दुष्यंत कुमार का एक बहुत फेमस लाइन्स है, इस नदी की धार पे ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार पे ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। जर्जर मतलब टूटी हुई। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इन दियों में तेल से भीगी हुई बातें तो है। आई मस्ट से एक कैलिबर है आप सब में। आज के समय में जब हिंदी छूट रही है, हिंदी को लोग उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आज की जनरेशन को हिंदी में कविता लिखते देखकर मुझे आज इतना अच्छा लगा। इनफैक्ट कुछ सर्कमस्टांसेस से शायद मैं ये पेशेंट आप लोगों का जज नहीं कर पाती, बट डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी चीज मिस करती। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, सबके एफर्ट्स को, सबके प्रयासों को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। और अक्षय इनामदार, आपको हिंदी में पोयम लिखने के लिए खास तौर से मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि हिंदी आपकी मदर टंग नहीं है। शायद इमोशंस इतने ज्यादा हैं हिंदी में एक्सप्रेस करने के लिए, शब्द हमारे पास इमोशंस को, कि वो एहसास नहीं हुआ। एंड आई मस्ट से मुझे बहुत अच्छी लगी आप सबकी पोयम, और रिजल्ट मैं आपके कोऑर्डिनेटर को शेयर कर दूंगी। रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सब मेरी नजरों में बिल्कुल टॉप मोस्ट हैं, सारे जीते हैं और सारे लोगों ने जो एफर्ट्स लिए हैं। आई वुड लाइक टू से सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्रिएटिविटी, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाला माँ सरस्वती आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर से बेहतर करें।
माला मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बिल्कुल सही कहा है रितु मैम ने, और वाकई में बहुत अच्छी शाम गुजरी है ये, और सारे स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि बाकी जजेस को थोड़ा डिफिकल्ट तो हो गया होगा जजमेंट करना, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request our second judge, Mr. Yagya Pandey, to share his opinions about the entries. Good evening, everyone. As I have been introduced, I am alumni of DME, and मेरे सारे professors भी मेरे को देख रहे हैं. Kind of nervous also. I'm also very nervous right now. But hello, मेरा नाम. I'd like to say first off, Ashay, amazing. You said that Hindi is not your mother tongue, and as the other judge also said, and rightly so, nahi laga yaar, bilkul. And you didn't let it come to your face, your expression, all what you said, and really nicely done. And just one critical analysis I had about this, all the performances, was that कई जगहों पे ना the poem, देखो poem जो है, it's an expression, it's your expression, it's your identity, it is an extension of you जब आप उसको बोल रहे हो, right? So कहीं ना कहीं काफी performances में rushing मेरे को बहुत ज़्यादा दिखा. You guys were trying to मतलब कैसे समझा, it's like you're trying to just बोल के निकलने वाला जो हिसाब होता है, काफी लोग वो मैं देख रहा था करने, due to nervousness, due to many factors at play. We're all at home. I can understand this is something new for many people. But yeah, except for that, creatively, I'd say really nicely done, everyone. जिसने English में भी बोला, I think there was one or two जिन्होंने पूरा अपना English poems बोले हैं. And me personally, yes, I am not very good with Hindi. I'm a little more English bent. मैं writer भी English का हूँ. So yes, वो वहाँ पे I really liked कि जो जिन्होंने भी जो हिंदी में भी बोले. And one thing that Dr. Ritu also pointed out, that जब आप poems बोल रहे हैं, try to keep it somewhere between difficult and simple. एक ना बहुत silver lining होता है. And you, because आप जिसको poem सुना रहे हो उसको सिर्फ expression, emotion नहीं, they should understand the words also, and they should get what you're trying to communicate to them. क्योंकि end of the day है ये communication ही, right? And we're all studying communication only. So the message hai, it has to come across very clearly. So yeah, through articulation, through creativity, and through the usage of slightly more viable words, I'd say things would take an upside down turn, and it would be all very good. But at the end of it, amazing evening I've spent, and amazing insight. मेरे को नहीं पता था इतना talented है मेरे college के बच्चे, and दूसरे colleges में. Symbiosis, I had been there for a very long time. बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, and I love the students on there also. So yeah, final results, I think जब भी announcement होगा, we'll give them. Special मैं तीन लोगों को ही बोलूँगा, आशे, you, Ganga for her poem, and Aditya. Aditya का although the one thing only that I'd say was उनका camera off था, I don't know for what reason. And rest everything was perfect. So yeah, you three for me were the best, and baki sab, I'd say congratulations, you've done an amazing feat. And poem likhna is not an easy task, being creative is not an easy task. So yes, hats off to you. Yeah, Thank you, sir. I congratulate all the participants for the catchy and captivating performances. We all are pleased with their performance. Thanks to you all. The results will be announced in the valedictory session on 13th of October at 5 p.m. Now, I would like to invite Professor Dr. Amveer Saxena in DME Media School to say his concluding remarks. जिस तरह का participation था, which I could make out, this in itself is encouraging. ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, निश्चित रूप से हिंदी में अगर कोई लिखता है तो that's a welcome thing. But भाषा कोई भी हो, आपका ज़्यादा जो important है मेरे हिसाब से वो आपका expression है.
और किसी भी भाषा में लिखें जिसमें जिसकी जो पारंगत हो, जिसमें जिसकी क्षमता हो, जिसमें जिसकी कैपेबिलिटी हो, वो लिखना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं साहित्य की हम बात करें, पोइट्री की बात करें, हमारे तमाम ऐसे लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जिनकी मातृभाषा कुछ और थी, उन्होंने लिखा किसी और भाषा में और बहुत अच्छा लिखा, और ऐसा लिखा जो मतलब मील का पत्थर है। या प्रोफेशन की भाषा कुछ और थी और उनकी लेखन की भाषा कुछ और थी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। फिराक गोरखपुरी से लेके हरवंश राय बच्चन तक के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ख़ास बात यह है कि आपके पास क्या कोई ऐसा आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आपके पास कुछ कहने के लिए है, और अगर वो कहने के लिए है तो क्या आपको उसको कम्युनिकेट करना, उसको संप्रेषित करना आता है? क्या आपके पास जिस भी भाषा में आप लिख रहे हैं उस भाषा में आपके पास शब्द हैं जिनसे आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली उससे अच्छा लेखक कोई हो नहीं सकता। इसी वजह से आप देखें कि जो लोग बहुत कम उम्र में कुछ लिख के चले गए वो सैकड़ों हजारों साल तक याद किए जाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर ऋतु ने एग्जाम्पल दिया दुष्यंत कुमार का, इतनी कम एज में वो चले गए, लेकिन जो लिख गए वो अमिट है। आज भी अगर आपको कुछ भी बोलना होता है, लिखना होता है, तो बिना दुष्यंत कुमार के उदाहरण के आपकी बात पूरी नहीं हो पाती। तो अगर तो उनके पास भी वही था, उनके पास शब्द भी थे ऑब्वियसली। जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत ही कम लोगों के पास उस तरह की भाषा होती है, और वैचारिक तौर पे भी वो इतना स्ट्रॉन्ग विचार है, इतना मजबूत विचार है कि उसके साथ अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए एक थोड़ी गहरी समझ भी चाहिए। विचार और भाषा के साथ समझ भी चाहिए, अपने समाज की समझ चाहिए, लोगों के की जो समस्याएं हैं उनकी समझ चाहिए। तो वो जब सारी चीजें एक साथ होती हैं तभी लेखन होता है, तभी साहित्य का सृजन होता है, तभी जो कविता है वो प्रस्फुटित होती है। तो वो सारी चीजें अगर है तो, और अच्छी बात है इस तरह की जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, जिसका फायदा यही है कि जिसके पास जो टैलेंट है वो सामने आ पाता है, लोगों के बीच आ पाता है। तो ऑब्वियसली यंग लोगों के लिए जो वो लिख रहे हैं, अगर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है इंटरनेट का जमाना है, फिर भी जो आमने सामने कही हुई बात होती है वो कहीं ज्यादा प्रभावित होती है। ये वर्चुअल है, लेकिन वर्चुअल में भी वो जो रियल का पुट है वो है कि जो सुन रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं, तो दे कैन फील दैट बोथ आर फेस टू फेस। तो इस तरह से जो भी प्रतियोगिताएं हैं वो कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट देती है। तो आई विल वेलकम एनी सच थिंग विच इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के इनिशिएटिव पे जो भी होगा, क्योंकि कल आज के यूथ का ही है, तो अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सबके लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. Now, I would like to request Mr. Pramod Pandey, Assistant Professor, DME Media School, for the vote Thank of you very thanks. much, everyone. First of all, I would like to say rather that this was a brilliant, 1 hour that I experienced. Some of the, performances by some students were very, heart warming, you can say, and, it really made us think a lot. So, and the kind of issues that were raised, the kind of passion that was exhibited, the kind of expressions, the use of language, it really makes us think and makes us, delve deep into the issues that are concerning our daily lives. So, that was something outstanding. And because now we have come to the formal end of this particular session, I would like to, extend my immense gratitude to the management of DME. Without the support of, Mr. Aman Sahni, Vice Chairman, DME, Honorable Justice Bhavar Singh Sir, Director General, DME, and Dr. Ravikant Swamy, Director, DME, it would not have been possible to come this far. I also thank them for giving us this wonderful opportunity and the resources to execute the same. Now, I would like to thank Dr. Amrish Saxena, Dean, DME Media School, and Dr. Susmita Bala, Head, DME Media School, for their constant guidance and encouragement at every step. I thank Jai Hind Times, our media partner, the student body of DME Media School, SPARK, which is Students with Positive Attitude and Resonating Communication. I must particularly thank our guest judge,
Dr. Ritu Dubey Tiwari ma'am, and alumni judge Mr. Yagya Pandey, who joined us today, who took time out of their busy schedules. I know Ritu ma'am was very busy and there was some circumstances, under which it was difficult for her to, judge the entire event, yet she managed. So she took time out of a very busy schedule and, joined, and even Yagya Pandey, they joined the session and they gave their valuable inputs to the students, to the participants, encouraged them. Thank you very much for that. I would like to, thank the student coordinators for this particular session. Coordinators, Ayushi Verma, Harsh Prajapati, Palak Rastogi. I'd like to thank anchor Chetna Garg. I would like to thank the backup anchor, that is Jigyasa Khanna, the technical team, Aditi Katyal, Vani Mishra. I would like to thank Shruti ma'am, special mention of Shruti ma'am, who's been taking care of, the entire event, and she has been monitoring it so closely, day and night. And she was with the students. She was always coordinating, always giving them the inputs. So thank you very much, ma'am, for that. I'd also like to thank, the entire student team of Ritika for the various inputs. And a special note of thanks to my colleagues at DME Media School, Mr. Sachin Nair, Mr. Yogesh Sharma, Mr. Sumantra Das for their technical support, Ms. Sukriti Arora, Mr. Mohammed Kamil for media coverage, Mr. Mohit Kishore Vats, Ms. Manmeet Kaur for their constant support and cooperation. Last but not the least, I'd like to thank my fellow faculty conveners of Ritika 2021, Dr. Manasvi Maheshwari, Dr. Krishna Pandey, Shruti ma'am again, and Ms. Mudita Raj for being excellent teammates and ensuring the smooth execution of the session. Now, again, but the most important thank you to all the participants, without whom this entire concept of slam poetry could not have been executed and would not have been possible. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. All this would have not been possible without the presence of such a great audience. Thanks to you all for attending today's evening and make this event extra special. Well, here we conclude the day 1 of Ritika. Waiting to see you all at day 2 of Ritika with a workshop on radio jockeying by Ms. Ankita Arya, RJ at Radio Zindagi, San Francisco, USA, tomorrow at 9:30. Have a good evening, everyone.